Okay. Now, as I said yesterday that there are so many tools available for the simulation over there. Okay, like ANSYS is there, right? Then the MATLAB is there, Abacus is there, then Nastran is there. There are so many softwares available for the simulation. Okay, now SeamScale is one of the best software we can say. Why it is called as the best software? Because the yes, user interface and all that we will be talking about that, but the major thing in the SeamScale is that we can use it. I mean, that is a cloud based software normally. Okay, so I'll tell you about it. Okay, so if you want to perform any analysis over there, but that is a cloud based software. Okay, now what is the cloud based software? So you can directly access it from your web browser. So जैसे हम लोग ने ऑन शेप का कैसे किया था, तो ऑन शेप इज अगेन अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर. तो बेसिकली आपको जो भी आपको क्रिएट करना है, सो विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर यू कैन क्रिएट दैट थिंग. ओके, एंड यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी मशीन. बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता है कि जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर अदर्स यूज करते हैं, सो दैट विल बी इंस्टॉल्ड ऑन द लोकल मशीन इटसेल्फ. ओके, and you have to work on that particular machine, and even if it is a license again, then in that case again you have to work on the same machine. Okay, if you want to install the license to other machine, then it is not possible, and that is completely dependent on the what we can say the local machine configuration. But here it is not dependent on the local machine. If you have any sort of configuration, no matter, you can use the seam scale. With the help of that cloud based software you can solve any, or you can do any analysis over there. Okay, so that will be completely using the cloud systems again. यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करते हैं, कोर्स एंड ऑल दैट भी यूज करते हैं ना, लाइकवाइज वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, कोर्स ही यूज करते हैं. बट अगेन ऐसा हो जाता है कि हम लोग फिलहाल के लिए अभी नॉर्मल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं. मतलब हम लोग जो भी है द फ्री एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट वर्जन है. ओके, सो इन दैट केस एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, सो मतलब कुछ मॉडल्स अवेलेबल है, कुछ नहीं है यहाँ पे, but still we can use that particular thing over there. Okay, so now whenever you are using it for the free, ठीक है, so कुछ functions है उनके, कुछ features है वहाँ पे. so वहाँ पे जो भी आप create करोगे, I mean जो भी आप analysis करोगे, जो भी आप projects create करते हो, बेसिकली दोज प्रोजेक्ट्स आर पब्लिक प्रोजेक्ट्स. मतलब जब आप फ्री वर्जन यूज करते हो ना, तो उस टाइम पे दैट इज अ पब्लिक वर्जन अवेलेबल रहता है. तो मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट्स करोगे, सो दैट विल बी अवेलेबल फॉर others also. So others can see your projects, whereas if you purchase the subscription, in that case there will be a option called as a private project. So in that case you can put some projects as a private over there, as well as the number of cores available, that will be maximum. Okay, so right now we are using up to 32 cores over here. In that case you can use up to 96 cores for the standard version over there, right? Now what is the application, I mean what type of problems we can solve over here? So the finite element module, so basically if you want to perform the structure analysis, vibration analysis, okay, then all these things you can solve it by using the what we can say, there's seam scale over there. Then you can solve the CFD problems. Okay, as well as you can solve the what we can say, the thermal modules and all that. So all those things you can solve it over there. Okay, so let's see what is the user interface and how we can solve it. I'll share my screen. Okay, now just open your browser and just go to the seamscale.com. Right, so once you go to the seamscale.com, it will be asking you for the what we can say,
the login over there. I guess all of you have done with the login. किसी का बाकी है अभी भी? Okay, I guess everybody has done it. Otherwise, do it right now. Okay. So यहाँ पे जाके हम लोग को क्या करना है, लॉग इन करना है. So I have already logged in over here, so that's why I don't need to. I mean, for me, no need to log in it again. But now I can see the option over here, that is the start simulation for the free. Okay, so we have considered the simulation over here. So in the free version they will be providing a simulation of 3000 hours का जो simulation है, so that will be free. Okay, so ठीक है, no issue, we can use that thing. So what I'll do is I will start simulating it. So I will go to the start. Once you start it, you will be reached to the dashboard over here. तो यहाँ पे ये डैशबोर्ड अवेलेबल है. यहाँ पे डैशबोर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, so जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किए हुए, तो आप यहाँ पे उनको एक्सेस कर सकते हो. तो यहाँ पे ऑल प्रोजेक्ट्स हैं, या तो ओन बाय मी या फिर शेयर्ड विथ मी, मतलब या तो जो भी मैंने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी. अगर कोई शेयर्ड प्रोजेक्ट्स है बेसिकली, तो आपको वो भी दिख जाएंगे. ओके, चलो. सो दिस इज द डैशबोर्ड. तो यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है वो सारे दिख जाएंगे मुझे. बट अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपका पूरा एक्टिविटी भी दिखता है. तो बेसिकली आपने क्या क्या यूज़ किया हुआ है, देन आपका ये करंट प्लान कौन सा है, एंड ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी इट ओवर हियर इन द अकाउंट. ओके, ये पूरा यूसेज के बारे में बता रहा है. ठीक है, सो आई हैव यूज्ड 1 hour ऑफ आउट ऑफ 3000 आवर्स. ये देखो, ये पूरा अलग अलग चीज़ यहाँ पे पूरा कंप्लीटली बताया है. ठीक है, चलेगा. सो I'll use it. Go back again and I'll start with the what you can say, the analysis over there. Okay, now how to start with the new project. So यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट करके. So simply click on this new project. Okay, now first you need to define the title over there. तो जो भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे, उसका टाइटल आपको पहले यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. So I will write down the title as a uh, डेमो स्ट्रक्चरल करके मैं लिखता हूँ. ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको दे दिया डेमो स्ट्रक्चरल. जो भी है उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा यहाँ पे. सो यू कैन राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन ओवर हियर. ठीक है, वो डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो यहाँ पे. एंड यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है मेक प्रोजेक्ट, मेक प्राइवेट करके, बट करंटली दैट इज नॉट अवेलेबल विद अस बिकॉज we have used the free version, so that's why it is not available. So I cannot change this one. Then description, whatever the description is there, तो उसके बारे में उन्होंने बताया. देखो कि what is my project goal. So basically project description में हम लोग क्या क्या देंगे, तो प्रोजेक्ट का आपका गोल क्या था बेसिक, या फिर पर्टिकुलर गोल क्या है आपके प्रोजेक्ट का. ठीक है, देन कौन से टाइप ऑफ सिमुलेशन आप यूज़ करने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. as well as you can describe your projects more in detail. Is like what you are going to do it over there, or what I mean, जो भी आपने सोचा है कि हाँ, I will go for a structure analysis and my findings it will be the equivalent stress or whatever it is. So basically all the things, whatever the things are there, whatever the description of your projects is there, so you do it in the detail over there, right? So I just put this thing over here because मुझे अभी कुछ ज़्यादा इसके बारे में बताना नहीं है. देन यू चूज द कैटेगरी. सो बेसिकली ये कैसे प्रोजेक्ट सारे पब्लिक रहता है ना, तो मतलब आप कोई भी आपके प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं. तो
उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो आपको कैसा चाहिए, एरोस्पेस इंडस्ट्री में है, ऑटोमोटिव में है, कंस्ट्रक्शन एंड आई मीन आर्किटेक्चरल में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनर्जी, इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके, देर आर मल्टीपल व्हाट वी कैन से एप्लीकेशंस आर देयर, मतलब आपके जो भी कैटेगरीज यहाँ पे हैं एप्लीकेशन वाइज, ठीक है। तो उसमें से जो भी आपको यूज़ करना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को लगा नहीं मुझे इसको लर्निंग एंड टीचिंग में डालना है, तो आप उसको लर्निंग एंड टीचिंग में डाल सकते हो। एंड यहाँ पे टैग्स करके रहता है। नॉर्मली टैग किसके लिए रहता है, तो अगर कोई आपका प्रोजेक्ट सर्च कर रहा है पर्टिकुलरली, अगर कोई किसी को अगर सर्च करना है और उसको देखना है कि हम लोग ने प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है बेसिकली, तो उसके लिए ये टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको 12 टैग्स यू कैन पुट इट ओवर दैट, जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस है, स्ट्रेस है, या फिर जो भी नॉर्मल टैग्स रहते हैं हम लोग को, तो हम लोग वो उसमें ऐड करते हैं। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये टैग्स ऐड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आपको कौन सा यूनिट सिस्टम चाहिए, बेसिकली यू वांट टू गो फॉर अ मीटर्स, किलोग्राम, सेकेंड, सेल्सियस, या फिर इम्पेरियल दैट इज इंचेस, पाउंड। सो ये तो जो भी आपको यहाँ पे डिज़ायर चाहिए रहेगा, you can select it over there. Okay, and once you finish with this thing, just click on this create project. Yeah, so it will be starting with the workbench over there. Okay, now for the geometry you have a multiple options. Okay, so सबसे पहला ऑप्शन क्या रहता है, that you just drag and drop the geometry over here। मतलब कोई भी अगर geometry आपके पास अगर ऑलरेडी रहेगा, ओके, तो उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है द नेटिव फाइल फॉर्मेट प्रेफर्ड, दैट इज पैरासॉलिड। पैरासॉलिड करके एक हम लोग का फॉर्मेट रहता है बेसिकली। देन इट विल बी व्हाट, द सॉलिड वर्क्स, ऑटोडेस्क इन्वेंटर, राइनो, कैटिया, रेविट। ओके, supported file formats that will be ACIC, ACIS, the step file, IGS, या फिर STL। ओके, सो नॉर्मली या तो हम लोग डायरेक्टली सॉलिड वर्क्स, इन्वेंटर वगैरह ये सब फाइलें डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली स्टेप फाइल या फिर आईजीएस फाइल जो भी रहेगा तो वो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, दैट इज नथिंग बट इम्पोर्ट इट फ्रॉम द ऑन शेप। ओके, सो मतलब ऑन शेप में अगर आपने कोई ज्योमेट्री बनाया रहेगा, इन दैट केस यू कैन इम्पोर्ट इट फ्रॉम दैट ऑन शेप ओवर देयर। ओके, सो अगर आपको इम्पोर्ट करना है ऑन शेप से, सो सीधा इस पर क्लिक करो। I'll do the login over here. ओके, यहाँ से जो भी रहेगा आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। कौन सा ले लूँगा, एक मिनट, हम लोग एक है ना क्रिएट ही करते हैं, सो दैट इट विल बी अ बेटर वन। एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, विच इज हैविंग अ क्रॉस सेक्शन, दैट इज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन with a size of 50 by 10, and it is having a length of 250 mm। Okay, and what we need to do is we need to apply the boundary condition on it. So boundary conditions are, one end of the bar it will be fixed over there, and on the other side there is an force of 5 kilometer। Okay, so यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रायंगुलर बार करके।
So now what I'll do is I'll start working on the front plane. या फिर ना एक्स वाई प्लेन पे हम लोग काम करते हैं, बिकॉज वहाँ पे ना एक्स वाई एंड जेड टर्म्स में आता है। तो मैं अगर ये फ्रंट प्लेन लेके अगर काम करने जाऊँ ना तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। So instead of that, I'll select this one and go for a new sketch. And here it will be creating a rectangle. Dimensions I want this as a 50. This one, oh sorry, this one is 10. Okay, and we'll extrude it for 250 distance so that हम लोग का desired object रहेगा, so that will be there. ये देखो, okay, so ये वाला part मैंने यहाँ पे create किया हुआ है. So what I want to do is I want to import this part into Simscape. Okay, so how to do it? Again I'll go to this one. Okay, तभी ज्योमेट्री का डायरेक्टली ऑप्शन आया था बट मैंने ज्योमेट्री सेलेक्ट नहीं किया था ना। अगर ऐसा हो जाता है और अगर आपको वापस ज्योमेट्री अगर ऐड करना है, सो यहाँ पे ये प्लस आइकॉन दिख रहा है। ओके, सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको ऑन कर सकते हो। सो आई क्लिक ऑन दिस प्लस आइकॉन। अगेन इट इज आस्किंग मी फॉर द ज्योमेट्री। ये मेरा रेक्टेंगुलर बार करके है, देखो। मैं पार्ट स्टूडियो ही ले लेता हूँ उसमें से। इंपोर्ट, सो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया। सो ये इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, so the geometry is successfully imported. Now we'll close this one and now you can see that there is a geometry. तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो you can see the geometry over here. ठीक है, see, this is the geometry. Okay, I'll say okay right now. क्लियर है। नाउ दिस इज द वर्क स्पेस। यहाँ पे जो भी आपको सिमुलेशन परफॉर्म करना है तो उसके सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, देन नीचे यहाँ पे है आपका जॉब स्टेटस। जॉब स्टेटस मतलब आप जो भी अभी परफॉर्म कर रहे हो, बेसिकली अगर आप मेशिंग कर रहे हो तो मेशिंग का यहाँ पे स्टेटस दिखेगा। अगर आप सिमुलेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सिमुलेशन का स्टेटस यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ऑल द थिंग्स आर देयर। ये हम लोग का वर्क स्पेस जिसमें हम लोग एक्चुअली काम करने वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग का क्या है कि अगर आपको व्यूज मोड अगर चेंज करना है तो आप इसको व्यू मोड चेंज कर सकते हो। पर्सपेक्टिव व्यू या फिर ऑर्थोगोनल व्यू हम लोग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन रेंडरिंग कैसे रखना है इसको, शेडेड विथ एजेस, ये वायर फ्रेम मॉडल आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में ट्रांसलूशन मतलब अंदर के जो एजेस है वो भी आपको दिखेंगे। ठीक है, या फिर सरफेस विद वायर फ्रेम, तो मतलब सरफेस भी दिखेगा एंड वायर फ्रेम्स यहाँ पे मॉडल आपको कम्प्लीटली दिख जाएगा। तो जो भी आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से यू कैन सिलेक्ट ओवर हियर। एंड अगर आपको क्या करना है कि वॉल्यूम अगर सिलेक्ट करना है, मतलब पूरा बॉडी सिलेक्शन अगर करना है, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कल बताया था आप लोग को ये सिलेक्शन फिल्टर, लाइकवाइज यहाँ पे भी सिलेक्शन फिल्टर इस तरह। सो यहाँ पे ये वॉल्यूम सिलेक्शन मतलब बॉडी सिलेक्शन है। If you want to select a face over here, तो you can say select a face over here। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग रोटेट एंड ऑल दैट यहाँ पे करना है, आपको कौन से व्यू में उसको देखना है, तो बेसिकली वो चीज़ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। देन स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट, मतलब अपना जो माउस व्हील है यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर मिडिल माउस प्रेस करके अगर आप उसको मूव करते हो सो इट विल बी पैनिंग। एंड नॉर्मल अगर आप उसको लेफ्ट क्लिक दबा के अगर माउस रोटेट करते हो
so that will be a rotation over there. Okay, so these are the three shortcuts available for the what we can say the seam scale over there. Okay, now is it clear, like up to geometry? Is there any doubt? Is there any doubt in this? Okay, fine. Sure. So now we can start with the further things. Okay. Now how to start the simulation in this? Okay. Basically यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में ही हम लोग क्रिएट करते जाएंगे ना, एक 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 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो डायरेक्टली हम उससे क्या करते जाएंगे, लाइक सिमुलेशन क्रिएट करते जाएंगे. नाउ हाउ टू स्टार्ट विद द सिमुलेशन. सो राइट नाउ द सिमुलेशन में यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे जीरो करके लिखा हुआ है. ओके, सो वी हैव टू ऐड द सिमुलेशन ओवर हियर. सो क्लिक ऑन दिस प्लस आइकॉन. ओके, सो यहाँ पे अगर आप प्लस आइकॉन सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे मल्टीपल ये है आपके पास सिमुलेशन है. कौन से है, तो यहाँ पे आप फ्लो सिमुलेशन कर सकते हो. तो यहाँ पे कौन सा है, कॉम्प्रेसिबल फ्लो है या इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो है. ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टी फेजिंग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्लूइड जो होता है, या फिर हीट ट्रांसफर वगैरह है, तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हो. वेर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में आप उसको स्टैटिक कर सकते हो. डायनामिक मीन्स मोशन में जब बॉडी है उस टाइम पे उसको करना है. हीट ट्रांसफर, टेम्परेचर एंड ऑल दैट अगर आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, थर्मोमैकेनिकल मीन्स द ये थर्मल स्ट्रेस अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस दैट इज नथिंग बट वाइब्रेशन एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग मॉडल एनालिसिस हम लोग एनसिस के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं. तो बेसिकली वी विल बी फाइंड आउट द फ्री वाइब्रेशंस ओवर देयर. और नीचे हार्मोनिक करके आता है. हार्मोनिक मतलब क्या है कि आपका फोर्स वाइब्रेशन वहाँ पे. ओके, सो बेसिकली जो भी टाइप ऑफ एनालिसिस आपको करना है तो आप उसको सिलेक्ट करो. आई विल स्टार्ट विद द स्टैटिक एनालिसिस. ओके, सो स्टैटिक में उसने दिया है दैट डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट, the stresses and strain in structures or component caused by the constraint and loads. Don't take into account inertia and damping effect. Both linear and non-linear analysis are included. Okay, so मतलब अगर आप static analysis अगर करते हो तो static analysis में हम लोग का जो main aim है, okay, so what is that aim? To find out the deformations or displacements, the stresses and the strains over there. किसमें से, structures या फिर components में से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. स्टैटिक कंडीशन में don't take into account that inertia and damping effect. Okay, so कुछ भी यहाँ पे इफेक्ट कंसिडर नहीं करेगा. And both the linear and the non-linear analysis those are included over here. Okay, so linear analysis मतलब क्या होता है कि अगर जैसे अगर मैं मटेरियल लिनियरिटी के बारे में अगर बात करता हूँ. Okay, so there are two types of, I mean, linearity and non-linearity concept is there. Okay, and non-linearity concept is more or important because you know what happened. मतलब मटेरियल नॉन लिनियरिटी के बारे में बताता हूँ. अब हम लोग ने ये एक चीज देखा है that within the elastic limit the stress is directly proportional to strain. Okay, तो मतलब क्या है कि जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा उसके प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेस भी बढ़ते जाएगा. सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर. ओके, ये कौन सा बिहेवियर शो करता है, दैट इज अ लीनियर बिहेवियर ऑफ द मटेरियल. ओके, बट नॉन लीनियर मटेरियल में क्या हो जाता है पता है, नॉन लीनियर मटेरियल में विद द एप्लीकेशन ऑफ द लोड स्ट्रेन बढ़ेगा जैसे, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते. तो स्ट्रेस अगर आपका थोड़ा बढ़ रहा है तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये ऐसा कुछ तो रहता है. देयर विल बी अ लार्ज डिफॉर्मेशंस, ओके, विद द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉलर लोड्स. एंड जिसकी वजह से क्या है कि फेलियर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज सडनली स्ट्रेस बढ़ रहा है या फिर सडनली स्ट्रेन अगर बढ़ रहा है वहाँ पे as compared to the stress over there. So that will be very what we can say the dangerous thing for our what we can say the any product over there. तो इसके लिए कभी कभी हम लोग को यही चीज रहता है that we need to do the non-linear analysis. non-linear effect भी हम लोग को चेक आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अदरवाइज लीनियर में तो मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो
सस्टेन कर रहा है, बट वही वही चीज क्या होता है, द नॉन लीनियर एनालिसिस में वो क्या हो जाएगा, इट विल बी फेल ओवर देयर. ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन डू इट ओवर देयर. सो जस्ट क्रिएट अ सिमुलेशन. ओके, तो यहाँ पे ये एनालिसिस अभी पूछ रहा है स्टैटिक एनालिसिस. अगर आपको नॉन लीनियर ऑन करना है तो आप यहाँ पे नॉन लीनियर भी ऑन कर सकते हैं. तो अभी के लिए मुझे ज़रूरी नहीं है नॉन लीनियर. आई विल से ओके राइट नाउ. ओके, तो पहले जब कुछ भी सिमुलेशन नहीं था एट दैट टाइम दिस completely was blank, but now we have added the simulation over here. Clear है? If you want to add any geometry operations over here, आप इसको ऑपरेशन कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, तो ये स्केलिंग मतलब अगर ऑब्जेक्ट को आपको थोड़ा बड़ा करना है तो वो भी कर सकते हो. इम्प्रिंट मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको अगर कुछ अलग अलग फेसेस या फिर कुछ अलग रीजन अगर क्रिएट करना है तो उसको इम्प्रिंट कर सकते हो. एंड फ्लो के लिए हम लोग मतलब जो फ्लूइड फ्लो एनालिसिस है उसके लिए फिर हम लोग को एनक्लोजर अगर क्रिएट करना है या फिर ओपन इनर रीजन या फिर क्लोज इनर रीजन अगर करना है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे. बट ये हम लोग का यहाँ पे कुछ यूजफुल नहीं है बिकॉज राइट नाउ वी आर डीलिंग विद अ सिंगल ज्योमेट्री ओवर देयर. सो ठीक है, फाइन. Then now we will see the one by one all the things. So basically यहाँ पे the geometry it is there. Okay, तो geometry इसके सामने ये green check mark है. So green check mark मतलब क्या है कि okay everything is fine over there. Okay, so मैंने जो भी geometry import किया है so वो geometry हम लोग का appropriate है, मतलब उसको जिस format में चाहिए basically तो उस format में वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे. ठीक है, देन यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो कॉन्टैक्ट्स करके आता है. अभी कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैसा है पता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स विल बी क्रिएटेड फॉर द असेंबली. मतलब अगर आपके ऑब्जेक्ट में क्या है कि मल्टीपल अगर पार्ट्स है और उन पार्ट्स के बीच में अगर आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, रिलेशन वहाँ पे शो करना है तो उसके लिए हम लोग कॉन्टैक्ट यूज करते हैं. ओके, सो करेंटली आई डोंट वांट एनी कॉन्टैक्ट ओवर हियर. ठीक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द पार्ट डिजाइन ओनली. आई मीन पार्ट के साथ में हम लोग काम कर रहे थे, इसके लिए फिर कॉन्टैक्ट्स की जरूरत नहीं है. बट इफ यू वांट टू ऐड द कॉन्टैक्ट सो यू कैन ऐड इट ओवर हियर. तो इसमें या तो आप उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्शन कर सकते हो. तो एंसिस में भी ये फॉर्मूला रहता है नॉर्मली दैट आप उसको ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक क्रिएशन आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती और एंसिस में वो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है. सिर्फ आपको कौन सा टाइप ऑफ डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हो. तो यहाँ पे ये बॉन्डेड करके रहता है. तो बॉन्डेड मतलब क्या है कि जो दो पार्ट्स के बीच में आपने बॉन्डेड कॉन्टेक्ट दिया हुआ है सो दोज बोथ द पार्ट्स वोंट गेट सेपरेटेड. मतलब दोनों भी पार्ट्स क्या नहीं होंगे, तो सेपरेट नहीं होंगे वहाँ पे. ठीक है, सेकेंड जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक. मतलब अगर आपको रोटेशन एंड ऑल दैट देना है अगर तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे ये साइक्लिक सिमेट्रिक यूज करते हैं. एंड थर्ड जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्लाइडिंग. तो मतलब क्या है कि दो सरफेसेस जो आपने सिलेक्ट किए हुए so both the surfaces will slide on each other. ओके, तो आपको जिसमें से जो भी आपको यहाँ पे मेट देना है या फिर जो भी कांटेक्ट देना है तो आप यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट द एलिमेंट टेक्नोलॉजी. ओके, सो एलिमेंट में अगर आपको कुछ एलिमेंट डेफिनेशंस अगर डिफाइन करना है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो. तो या तो आप उसको स्टैंडर्ड रख सकते हो या फिर रिड्यूस इंटीग्रेशन. समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा हेवी नहीं चाहिए तो आप उसको हेवी इंटीग्रेशन या सॉरी रिड्यूस इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हो. ठीक है, तो अभी के लिए तो मुझे कुछ ज़रूरी नहीं है बिकॉज मेरा जो भी है वो वेरी सिंपल है यहाँ पे. और यहाँ पे ये रेड कलर में आया है, देखो मैंने उसको कैंसिल भले ही किया था बट ये अभी ऐड हो गया है. सो आई वांट टू डिलीट दिस वन. ओके, एक चीज हमेशा याद रखना है कि आप जो भी यहाँ पे क्रिएट करते हो, ठीक है, तो बेसिकली उसमें हमेशा ग्रीन चेक मार्क आना चाहिए, कहीं पे भी ये रेड नहीं आना चाहिए. अगर रेड यहाँ पे आया तो समझ जाना है कि हम लोग का जो भी कुछ भी हम लोग ने जो सिलेक्शन किया है तो बेसिकली वो गलत किया है वहाँ पे या फिर कुछ मिसिंग है वहाँ पे, तो हम लोग को उस पर ध्यान देना पड़ता है. ओके, चलो, सो एलिमेंट के बारे में मैंने दिया. देन मॉडल, अगर आपको यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट अगर आपको चेकआउट करना है तो आप यहाँ पे उसको ऑन कर सकते हो. तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ग्रेविटी इफेक्ट लिया नहीं है
नॉर्मली फ्लुएंट प्रॉब्लम्स जो रहते हैं ना, फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स वगैरह, तो उसमें नॉर्मली हम लोग ग्रेविटीज एंड ऑल दैट कंसिडर करते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, ग्रेविटी यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है दैट इज नथिंग बट द मटेरियल। तो अभी ये मटेरियल के सामने यहाँ पे रेड कलर का सिंबल दिख रहा है, तो अभी तक मैंने मटेरियल यहाँ पे लिया नहीं है, ठीक है। आई वॉन्ट टू एड दैट मटेरियल, सो हाउ टू डू इट, सो सिंपली क्लिक ऑन दिस एड ओवर हियर, ठीक है। तो अभी इतने मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज एबीएस मटेरियल अवेलेबल है, एल्यूमिनियम है, ब्रास है, कॉपर है, ठीक है, ग्लास है। तो जो जो हम लोग को रेगुलरली हम लोग को लगते हैं, जो भी नॉर्मल एप्लीकेशंस में हम लोग को जो भी मटेरियल्स लगते हैं, तो बेसिकली दोज मटेरियल्स आर अवेलेबल ओवर हियर, ओके। तो आपको जो भी चाहिए, जैसे अगर मुझे यहाँ पे स्टील चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ये देखो, ओके। जो भी मटेरियल चाहिए इसमें से आप इसको सिलेक्ट कर लो एंड देन से अप्लाई, ओके। सो जैसे ही मैंने उसको अप्लाई कर दिया, नाउ व्हाट इट इज आस्किंग, सो फर्स्ट इज नथिंग बट द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। तो आपको कैसा चाहिए, द लीनियर, तो कैसा आपको चाहिए पे लीनियर एंड इलास्टिक। तो अभी के लिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल दिखा रहा है, बिकॉज मैंने नॉन लीनियर बिहेवियर नहीं लिया है, तो अदरवाइज वो यहाँ पे नॉन लीनियर भी यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। देन द सेकेंड थिंग इज नथिंग बट द यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस जो भी आपको चाहिए रहेगा आप यहाँ पे उसको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन पॉइसंस रेशो, तो जो भी पॉइसंस रेशो लगेगा वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट, हाँ ये यंग्स मॉडुलस एंड जो भी वैल्यूज आप डालोगे नॉर्मली उसमें कैसा हो जाता है, इज लाइक यू कैन सेलेक्ट एनी व्हाट यू कैन से द यूनिट ओवर हियर, ओके। आपको लगा नहीं मुझे पास्कल में नहीं, मुझे मेगा पास्कल में चाहिए या फिर किलो पास्कल में चाहिए या फिर बार में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो उस हिसाब से यू कैन सेलेक्ट इट ओवर हियर, ओके। एंड डेंसिटी, जो भी आपको डेंसिटी चाहिए रहेगा मटेरियल का, दैट यू कैन सेलेक्ट इट ओवर, ओके। तो अभी के केस में मुझे डेंसिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी के लिए ये यंग्स मॉडुलस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर दो। और यहाँ पे असाइनमेंट वॉल्यूम, तो आपको ये पर्टिकुलर मटेरियल कौन से वॉल्यूम के लिए डिफाइन करना है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो वहाँ पे, ओके। सो आई हैव सिलेक्टेड दिस वन, ये ऑटोमेटिकली अभी के लिए यहाँ पे आया है, अदरवाइज आप यहाँ से उसको सिलेक्शन भी कर सकते हो, ओके। And this will be added over here, and then clear है। now एक और क्वेश्चन माइंड में आ सकता है दैट कि अगर मैं मटेरियल ऐड करता हूँ, ओके, तो बहुत ही कम मटेरियल अवेलेबल है, मतलब मेरे ख्याल से 20 से भी कम ही मटेरियल अवेलेबल है, बट एक्चुअल में हम लोग को कभी कभी बहुत अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल लगते हैं, या फिर अगर हम लोग को मैन्युअली अगर क्रिएट करना है तो फिर हम लोग कैसे उसको क्रिएट कर पाएंगे, ओके। तो उसके लिए फिर एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि जो भी मेरा ये एग्जिस्टिंग मटेरियल है आप उसको क्या करो, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लो, ओके। सो जो भी आप डुप्लीकेट करोगे, जो भी आपको उसका नाम डिफाइन करना है तो आप इसका नाम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मटेरियल वन करके, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको मटेरियल नाम दे दिया, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे बिहेवियर जो भी देना है आप दे सकते हो, एंड जो भी वैल्यू आपको चेंज करना है आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं, देखो, ठीक है। आप यहाँ से भी उसके वैल्यूज चेंज कर सकते हो। डेंसिटी अगर आपको लगा कुछ अलग चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे अलग से डिफाइन कर सकते हैं, एंड देन ओके, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो भी स्टैंडर्ड अवेलेबल है हमारे पास तो वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर सेकेंड जो रहता है दैट इज नथिंग बट जो मटेरियल है वो आप अलग से भी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है, एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट सो फार? ओके, चलो, so this was all about the material. Then the next thing is nothing but the boundary conditions, okay. Now what we have to do is we need to assign the boundary conditions over there. There is like what type of load it is there, what type of displacement you are using, I mean what type of supports and all that you are using, तो वो हम लोग यहाँ पे define कर सकते हैं. So how to do it?
So click on this boundary condition. So it will be asking you like what type of what you can say boundary condition you want to add over here. तो या तो elastic support is there, the fixed support is there, okay. या फिर आपको एक कुछ फिक्स वैल्यू अगर देना है तो आप वो भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब इतना ही डिफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। सो द रिमोट डिस्प्लेसमेंट इज देयर, ओके। डिस्प्लेसमेंट मतलब जो भी रोलर सपोर्ट एंड ऑल दैट अगर हम लोग को यूज करना है तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। देन अगर आपके ऑब्जेक्ट में आपको रोटेटिंग मोशन अगर देना है तो आप रोटेटिंग मोशन दे सकते हो। सिमेट्री प्लेन अगर क्रिएट करना है, कोई भी सिमेट्री ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके सिमेट्री प्लेन्स आप क्रिएट कर सकते हो। कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर अप्लाई करना है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। फोर्स अगर रहेगा तो फोर्स अप्लाई कर सकते हो। नोडल लोड मतलब एक कोई पॉइंट पे अगर आपको लोड ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। इफ यू वांट टू यूज द प्रेशर तो आप प्रेशर भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। रिमोट फोर्स इज देयर। सो रिमोट फोर्स नॉर्मली क्या अलाउ करता है पता है, ये जो रिमोट डिस्प्लेसमेंट या फिर ये जो रिमोट फोर्स है, बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, ओके। सो सॉरी, बेसिकली ये रिमोट डिस्प्लेसमेंट एंड रिमोट फोर्स का आई मीन कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अभी यहाँ पे दिया नहीं है बेसिकली, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करके भी रहता है और यहाँ पे फोर्स है। तो जो भी आपका फोर्स है या फिर जो भी डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली दैट विल बी एप्लीकेबल एट द सेंटर ऑफ द फेस। जो भी आप एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं, जैसे अगर ये फेस मैंने अगर सिलेक्ट कर लिया तो ये फेस के एग्जैक्टली सेंटर में अप्लाई होता है, ठीक है। बट वही चीज अगर आपको लगा नहीं मुझे क्या करना है कि सेंटर में नहीं अप्लाई करना है, मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अप्लाई करना है, जैसे ये फेस पे अगर मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, किसी और प्लेस पे अगर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आई विल यूज द रिमोट फोर्स और द रिमोट डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर। तो रिमोट डिस्प्लेसमेंट आपको क्या अलाउ करता है कि जो भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है अगर आपका, तो उसके लिए फिर वो अलाउ करता है, ठीक है। चलो देन सरफेस लोड, अगर आपको कोई एक सरफेस लोड अगर आपको डिफाइन करना है या फिर वॉल्यूम लोड, तो जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हो। सो नाउ इन आवर केस व्हाट आई विल डू इज I will apply the fixed support on this face and on the other side we will apply the load over there, okay। So I'll go for a fixed support। वो बोल रहा है कि pick face और volume। I will select this face over here। तो ये देखो यहाँ पे आया है and then ठीक है, मैंने एक साइड पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर सॉरी फिक्स सपोर्ट अप्लाई कर दिया एंड ऑन द अदर साइड आई वांट टू अप्लाई द लोड ओवर दैट। सो आई विल गो फॉर न्यू वन, फोर्स सिलेक्शन करता हूँ मैं कौन से इस पे चाहिए, देन आपको कौन से डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना है बेसिकली, ठीक है। तो ओके, इसमें भी अगर आपको स्टेप फॉर्मेट में अगर चाहिए, मतलब अलग अलग वेरिएबल फोर्सेस चाहिए ना, तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए ये यहाँ पे वैलिड नहीं है बिकॉज हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो अभी के केस में मैं क्या करूँगा, सीधा वैल्यू यहाँ पे दूंगा। मेरा जो अभी लोड अप्लाई होगा ये पर्टिकुलर परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर फेस ओवर है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है, दैट इज जेड ओवर हियर, ओके। तो जो भी आपको डायरेक्शन में चाहिए, जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए, आप डायरेक्टली यहाँ पे उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी जेड में देता हूँ, दैट इज 5000, ओके, दैट इज इन न्यूटन। अगर आपको एलबीएफ में चाहिए रहेगा तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे वैल्यू दे दिया, दैट इज इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अगर निगेटिव जेड डायरेक्शन है, मतलब कंप्रेसिव लोड अगर है, तो आप यहाँ पे उसको निगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। एंड देन so the fixed support is applied over here and the second thing is nothing but मैंने ये वाले फेस पे फोर्स अप्लाई कर दिया, ओके। देन ये हम लोग का रहता है, दैट इज आई मीन प्रोसेसर्स एंड ऑल दैट, मतलब कौन सा यूज करना है सॉल्वर वगैरह, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसको, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, नो नीड टू कंसिडर दिस थिंग ओवर हियर, ठीक है। देन सिमुलेशन कंट्रोल इज लाइक कितने आई मीन टाइम स्टेपिंग आपको यूज करना है क्या,
नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कितने यूज़ करने हैं, तो आप यहाँ पे एक कोर, दो कोर, इतना आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड मैक्सिमम रन टाइम, तो आप इसको कितने टाइम के लिए रन करना है, तो आप यहाँ पे उसको रन कर सकते हैं। तो जैसे अभी 1 घंटे के लिए अगर आपको करना है, तो आप 1 घंटे के लिए कर सकते हैं। अगर आपको कम के लिए लगा तो आप उसको कम में भी कर सकते हैं, ओके। इसका यूज़ क्या होता है कि मैक्सिमम रन टाइम अगर एग्जिस्ट हो गया, आई मीन एक्सीड अगर हो गया, तो उस टाइम पे आपका सिमुलेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, इट विल बी टर्मिनेटिंग ऑटोमेटिकली, ओके। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं है उसको ही एज इट इज रख देता, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट, अगर आपको रिजल्ट कंट्रोल कुछ ऐड करना है इसमें, तो जैसे अगर एज के लिए कुछ कैलकुलेशन करना है, एरिया कैलकुलेशन करना है, या फिर वॉल्यूम कैलकुलेशन करना है, तो आप उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। Then the next thing is nothing but the mesh over there, because mesh is very much important over here. So just click on the mesh. Okay. So यहाँ पे आपको मैशिंग कैसे देना है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मैश अगर देना है, या फिर टेट्रा डोमिनेंट रहता है नॉर्मली, स्टैंडर्ड में कैसा हेक्सा डोमिनेंट आ जाता है, ठीक है। अगर आपको लगा नहीं मुझे टेट्रा डोमिनेंट चाहिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हेक्सा डोमिनेंट यहाँ पे CFT में ही अवेलेबल वो दिखा रहा है, ठीक है। मतलब हेक्सागोनल मैशिंग हम लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप के मैशिंग्स रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 1D के बारे में अगर बात करते हैं, तो हम लोग लीनियर वहाँ पे यूज़ करते हैं नॉर्मली, वेरएज 2D में हम लोग क्या करते हैं, दैट इज द क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायंगुलर टाइप ऑफ एलिमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं। फॉर 3D मैशिंग हम लोग कौन से यूज़ करते हैं, तो टेट्राहेड्रॉन, हेक्साहेड्रॉन, ठीक है। उसके बाद में प्रिज्मेटिक, ठीक है। ये हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे ऑटोमेट मतलब जो भी है स्टैंडर्ड ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट द साइजिंग। साइजिंग में अगर आपको ऑटोमेटिक साइजिंग करना है, तो ऑटोमेटिक साइजिंग में क्या है कि जो भी फाइननेस है उसका, ठीक है, सो दैट विल बी डन बाय द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। एंड अगर आपको खुद से करना है, तो आप यहाँ पे मैन्युअली कर सकते हो। तो जो भी आपको मैक्सिमम एज लेंथ रखना है, तो आप यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं चाहिए तो ऑटोमेटिकली ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको फाइननेस जो है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, तो कोर्स या फिर फाइन मेशिंग, ओके। तो आप जितना फाइन मेशिंग करोगे, उतना क्या है कि आपका रिजल्ट जो रहता है वो एक्यूरेट रहता है। मतलब जितना ज़्यादा हम लोग मेशिंग करेंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेंगे, उसके हिसाब से क्या है दैट योर रिजल्ट विल बी मोर एक्यूरेट ओवर हियर। तो अभी के लिए मैं इसको नॉर्मली रखता हूँ, 7 पे रखता हूँ फाइननेस इसका, ठीक है। देन सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट अगर आपको देना है यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर आपको नॉर्मल एनालिसिस, फास्ट एनालिसिस करना है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर में अगर रख सकते हो, ठीक है। बट हायर क्वालिटी अगर आपको रिजल्ट चाहिए, मतलब मोर ओवर एक्यूरेट रिजल्ट अगर आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट आप यूज कर सकते हो। तो जो भी आपका एनालिसिस रहेगा, सो दैट विल बी मोर एक्यूरेट ओवर देयर, ओके। फिर नंबर ऑफ प्रोसेसर, राइट नाउ वी कैन नॉट डू इट बिकॉज दिस इज अवेलेबल फॉर द, आई मीन जो प्रो लेवल है उनका, उसके लिए ही अवेलेबल है यहाँ पे। देन एडवांस सेटिंग में अगर आपको कुछ स्मॉल फीचर सपरेशन अगर करना है, तो आप यहाँ पे स्मॉल फीचर्स को सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर गैप है, तो उसको गैप को फिल करने के लिए आप यहाँ पे उसको फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे कुछ एडवांस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। And then what I'll do is I'll click on the generate. तो मैंने यहाँ पे उसका mesh जो है वो generate किया है यहाँ पे। so यहाँ पे ये दिखा रहा है, देखो कि 20-30% हो गया। एंड इवन ये जॉब स्टेटस में दिखा रहा है कि अभी मेशिंग यहाँ पे हो रहा है करके। अगर आपको स्टॉप करना है, आप यहाँ से उसको स्टॉप कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो।
सो बेसिकली दिस इज फिनिश्ड ओवर हियर, ठीक है। अगर आपको लॉग उसका देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट नंबर ऑफ नोड्स आर 23,000, नंबर ऑफ एजेस आर 404, नंबर ऑफ फेसेस आर 4336, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स इतने हैं उसमें, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इतने हैं, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, टेट्राहेड्रॉन, मतलब पूरा यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है कि जो भी मैशिंग हम लोग ने किया है तो उसमें कितने एलिमेंट्स एंड ऑल दैट है। तो यू कैन सी द मैशिंग ओवर हियर, सी ये ऐसे सब कलरफुल ये दिख रहा है, अलग अलग लाइंस एंड ऑल दैट। so basically this is called as a meshing over there, so the meshing has been done। अगर आपको इसको कुछ और रिफाइन करना है तो आप इसको रिफाइनमेंट कर सकते हो, okay? तो देखेंगे हम लोग आगे कुछ और एप्लीकेशन है तो यहाँ पे हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको मैश क्वालिटी अगर देखना है तो आप मैश का क्वालिटी भी देख सकते हो यहाँ पे। मैशिंग का यूज बेसिकली हम लोग का जो मेथड रहता है एफईए में, उसमें ऐसा रहता है कि जो भी हम लोग का ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स रहते हैं उतना एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ता है, ऐसा होता है। क्योंकि आपका जो भी एक्यूरेसी है एनालिसिस का दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मैशिंग। फाइन मैशिंग है, कोर्स मैशिंग है, मतलब अब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपने कम रखा है तो उस केस में आपका रिजल्ट है वो उतना एक्यूरेट नहीं रहता, बट आपने अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखे, स्मॉलर एलिमेंट्स, इन दैट केस द एक्यूरेसी विल बी मोर, ओके। तो यहाँ पे आप उसका क्वालिटी भी जो अगर चेकआउट करना है तो आप उसको चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी के केस में आई डोंट वांट एनीथिंग, देन आई विल गो टू द डायरेक्टली सिमुलेशन, ओके। क्योंकि हम लोग का बाउंड देखो, ज्योमेट्री मैंने डिफाइन ऑलरेडी कर दिया है, मैशिंग भी हो, मटेरियल भी हो गया मेरा, मैशिंग हो गया, द बाउंड्री कंडीशन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो फॉर अ सिमुलेशन, मतलब रन करना है अभी इसको। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकॉन, ओके। तो कितना एस्टिमेशन उसने दिखाया, तो 0 to 9 मिनट्स के अंदर हो जाएगा मे बी। एंड कंप्यूट रिसोर्सेज 0.3 कोर्स आवर्स का वो स्पीड दिखा रहा है यहाँ पे। और आपको रन का जो भी नाम देना है आप यहाँ पे उसको दे सकते हो, एंड देन स्टार्ट। एक्चुअली जो सिमुलेशन फेज है, मतलब जो भी सॉल्विंग फेज है हम लोग का, दैट इज कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। सो आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, तो जो भी है ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाता है। So we'll wait for some time, it is 30% हो गया अभी। किसमें, एक बार वापस ये कर, यहाँ पे जो रिजल्ट कंट्रोल है ना, या फिर ये जो सिमुलेशन कंट्रोल है ना यहाँ पे, उसमें जाके टाइम बढ़ा। यहाँ पे जाके टाइम बढ़ा। ओके, इट इज फिनिशिंग अप, ठीक है। यहाँ पे फिनिश हो गया है नाउ, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सी द पोस्ट प्रोसेस रिजल्ट, मतलब सिमुलेशन हम लोग का हो गया। नाउ वी कैन गो एंड सी द रिजल्ट्स ओवर दैट, सो व्हाट रिजल्ट्स वी आर गेटिंग। So click on this solution field over here, okay, this is opening results, ओके। अभी इसमें आपको क्या क्या देखना है बेसिकली, तो वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। तो सबसे पहला तो ये है, आपको इसको कैसे देखना है, सरफेस फॉर्म में देखना है, ओके। देन थोड़ा ट्रांसलूसेंट सरफेस आपको दिखेगा, ठीक है। फिर सरफेस विथ एजेस आउटलाइन मेश यहाँ पे आपको दिखेगा। देन ऑल मेश,
ठीक है। तो सारे के सारे मैश अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे। सिर्फ नॉर्मल ज्योमेट्री रहेगा आउटलाइन मैश विथ, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है। देन लाइंस ओनली, तो यहाँ पे खाली आपको मैश ही दिखेगा, ये देखो पूरा मैश मॉडल दिखेगा, सॉलिड कुछ भी नहीं वहाँ पे दिखेगा। वायर फ्रेम में अगर देखना है तो वायर फ्रेम में देख सकते हो। ठीक है। से पॉइंट्स में अगर देखना है तो आप पॉइंट्स में भी देख सकते हैं। देखो जो भी नोड्स है ना, तो बेसिकली ये नोड्स शो कर रहा है, देखो यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो अलग अलग जो भी आपको चेकआउट करना है इसको, तो आप अलग अलग वे में इसको चेक कर सकते हो। ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ऐड द रिजल्ट्स ओवर देयर। तो उसको रिजल्ट्स कैसे ऐड करेंगे, सिंपली क्लिक ऑन दिस रिजल्ट्स। ओके, अभी आपको यहाँ पे क्या चाहिए, अभी आपको यहाँ पे कॉन्टूर चाहिए, या फिर उसको सिर्फ वेक्टर फॉर्म में देखना है या डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में देखना है, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के है ना, ये देखो रिजल्ट्स है, देखो जैसे स्ट्रेस मैग्नीट्यूड है, ठीक है, दैट इज इन वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, या फिर कंप्लीट अगर स्ट्रेस है यहाँ पे। देन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको देखना है। जैसे अगर मुझे देखना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, सिंपली क्लिक ऑन दिस आइकॉन, तो यहाँ पे ये डिफॉर्मेशन आएगा, देखो दिस ब्लू कलर शोज द मिनिमम वैल्यू, whereas ये वाला जो रेड कलर शोज दैट शोज द मैक्सिमम वैल्यू ओवर हियर। ओके, तो ये मेरा वैल्यू कितना है, 0 है, एंड मेरा मैक्सिमम वैल्यू कितना है, दैट इज 0.00001216। ओके, सो दैट इज इन मीटर्स ओवर देयर, राइट। देन अगर आपको लगा नहीं मुझे क्या करना है कि इसका इक्विवेलेंट स्ट्रेस अगर देखना है, तो इक्विवेलेंट स्ट्रेस के लिए यहाँ पे ये वन माइसिस स्ट्रेसेस करके रहता है, so just click on that one mysis stresses, so it shows the one mysis stress over here। ये देखो, तो अभी यहाँ पे मैं इसका जरा चेंज कर लेता हूँ, ये देखो। ठीक है, अभी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, दैट इज 168,99256, दैट इज इन पास्कल यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू जो है वो मेरा यहाँ पे इतना शो कर रहा है। तो अभी आपको देखना है कि कहाँ पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बेसिकली आप देखोगे तो मैक्सिमम रीजन में यू कैन सी द ग्रीन कलर ओवर हियर। तो ग्रीन का रेंज कहाँ पे है, ये मतलब ये नॉर्मली ये रेंज में है, देखो यहाँ पे। ठीक है, whereas रेड कलर शोज द मैक्सिमम वैल्यू एंड ब्लू कलर शोज द मिनिमम वैल्यू। तो मेरा रेड कलर कहाँ पे आ रहा है, तो जो भी ये कॉर्नर्स है देखो सब, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरा रेड कलर में आ रहा है। तो मतलब मेरा जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस है दैट विल बी एप्लीकेबल एट दिस पर्टिकुलर कॉर्नर्स ओवर देयर, वेयरएज ये जो मिड पार्ट है यहाँ पे सबसे कम स्ट्रेस आ रहा है, बिकॉज जो भी मेरा सपोर्ट है तो वहाँ पे मेरा फिक्स सपोर्ट वहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो इसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे सबसे कम स्ट्रेस आ रहा है, वेयरएज जो कॉर्नर्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। नॉर्मली ना ऐसा ही होता है दैट जो भी हम लोग के कॉर्नर्स रहते हैं, मतलब जहाँ पे फिक्स सपोर्ट है एंड जहाँ पे कॉर्नर्स रहेंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस एक्ट होगा। तो यू कैन सी दैट ये वाले कॉर्नर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अवेलेबल है। क्लियर है। कलरफुल बार, ये रिजल्ट में आप क्लिक, रिजल्ट पे आप क्लिक करो, तो यहाँ पे ये नीचे से रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, उसमें से जो भी आपको रिजल्ट चाहिए सिर्फ आप सिलेक्ट करके ये जो आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करो, तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्टूर आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपको वेक्टर्स फॉर्म में देखना है तो वेक्टर्स फॉर्म में दे देख सकते हैं, देखो दिख रहा है, ये सब वेक्टर्स है, देखो यहाँ पे कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है, इट इज शोइंग ओवर देयर। क्लियर है। जो भी आपको रिजल्ट देखना है आप यहाँ से उसको देख सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी उसको स्विच कर सकते हो। जैसे अगर मुझे वन माइसिस स्ट्रेसेस देखना है तो आप यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड नंबर ऑफ लेवल्स अगर आपको इंक्रीज करना है, ये देखो आप इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ पे, देखो
एक सेकंड, मैं वो ना ये कर लेता हूँ, ये दोनों डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगा नहीं मुझे ज़्यादा ये नहीं लेना है, वैल्यूज़ नहीं लेना है, तो आप ये वाला जो लेजेंड्स हम लोग इसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये अगर आपको ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं चाहिए तो आप यहाँ से उसके वैल्यूज़ मैंने ये कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। सर ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इन्वर्टेड चाहिए तो इन्वर्टेड भी रख सकते हो। रेड कलर शोज मिनिमम वैल्यू, ब्लू कलर शोज मैक्सिमम वैल्यू, पर हमेशा हम लोग ऐसा ही कंसिडर करते हैं कि ब्लू कलर शोज द मिनिमम वैल्यू एंड रेड कलर शोज मैक्सिमम वैल्यू। देन आपको ब्लैक एंड व्हाइट में भी आप रख सकते हो, ग्रे स्केल जिसको हम लोग बोलते हैं। अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है, तो जो भी आपको चाहिए रहेगा उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन कंटिन्यूस लेजेंड्स अगर आपको चाहिए तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में ऐसा दिखाएगा। देखो पहले ब्लॉक में दिखा रहे थे ना अलग अलग, ऐसा वो कंटिन्यूस चाहिए तो कंटिन्यूस दिखा सकते हैं। देन मैन्युअली अगर आपको रेंज डिसाइड करना है तो आप मैन्युअली भी यहाँ पे कर सकते हो कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू अगर चाहिए तो वो भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? और ये जो बाकी के ऑप्शंस है ना, नॉर्मली द कटिंग प्लेन्स, आइसो सरफेसेस एंड ऑल दैट, ये नॉर्मली ना फ्लूएंट में ज़्यादातर यूज होता है, यहाँ पे इतना यूज नहीं होता है। फ्लूएंट में ना हम लोग सबसे ज़्यादा नॉर्मली यूज करते हैं, सो दैट मतलब अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मुझे अगर देखना है तो उसके लिए फिर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नॉर्मली मल्टी फेजिंग रहेगा या फिर मल्टी स्पीसीज एनालिसिस एंड ऑल दैट रहेगा, तो उसमें ज़्यादातर हम लोग ये बाकी ऑप्शंस यूज़ करते हैं, पार्टिकल ट्रैकिंग एंड ऑल दैट। स्क्रीनशॉट अगर आपको देना है तो आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ये देखो, ओके, इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लो। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? हाँ, इसमें से दो ऑप्शन हमेशा हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला जो रहता है दैट इज द टोटल डिफॉर्मेशन, तो यहाँ पे ये टोटल डिफॉर्मेशन और इक्विवेलेंट स्ट्रेस, ये दो चीजें हमेशा लेना है हम लोग को। ये वन माइसिस स्ट्रेस नीचे है, देखो इक्विवेलेंट स्ट्रेस। ओके, क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? नॉर्मली जो इक्विवेलेंट स्ट्रेस है ना वो हम लोग के लिए मोर और इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जो भी मेरा डिज़ाइन सेफ है या नहीं है ये देखने के लिए कम्प्लीटली इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द इक्विवेलेंट स्ट्रेस ओवर देयर। तो इसके लिए फिर हम लोग हमेशा वन माइसिस स्ट्रेसेस ही कंसिडर करते हैं। क्लियर? चलेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई दिस थिंग राइट नाउ। ठीक है, एंड कुछ डाउट आता है तो मेरे को पूछ लो।